So in this PYQ session for CA Foundation, we will be discussing the past year questions of CA Foundation law, and the chapter which will be covering in this video is the Sale of Goods Act. So all the past exam questions from May 2018 till the December 2020 attempt, all the past exam questions we are going to cover for the Sale of Goods Act. So first question that was there from the Sale of Goods Act that we have is this: what is meant by the delivery of the goods, and state the various modes of delivery. So इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप क्या लिखोगे? What do you mean by delivery? What do you mean by delivery? Remember, voluntary ट्रांसफर जब आप करते हो उसी को डिलीवरी बोलते हैं. Yes or no? Delivery is what? Delivery is the voluntary transfer. Correct? Yes, transferring of property. Uh, you need to add one more thing, Aparajita, in this answer of yours. Voluntary transfer. Yes, correct. And what are the three modes of delivery? What are the three modes of delivery? मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लास स्लाइड्स जो है I'll just open that as well so that we get a correct idea about what we have just covered. तो उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे. ये देखिए, ये था. It means voluntary transfer of the possession from one person to the other. And the three types of delivery are the actual delivery, constructive delivery, and the symbolic delivery. Correct? बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट अपराजिता. राइट? चलिए, सो ये आपका एक क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का है. अब आप मुझे बताओ 4 मार्क्स के लिए आप क्या लिखोगे? So in one line you are going to explain what is delivery, where what is relevant and what is important here that you need to mention. It is the voluntary transfer. ये आपको लिखना जरूरी होगा. And then you will explain in one line what is actual delivery, what is constructive delivery, and what is symbolic delivery. Okay, guys, does this make sense? Right? इसके बाद में जो नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आपका क्वेश्चन है वो आ जाता है आपका व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड स्टेट द एसेंशियल्स रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ अनएसर्टेन गुड्स. और ये आपसे कितने मार्क्स के लिए पूछा है? 6 मार्क्स के लिए पूछा है. तो आप सबसे पहले यहां पर क्या बताओगे? व्हाट डू यू मीन बाय, क्योंकि यहां पर देखो अनएसर्टेन गुड्स आ गया है और appropriation मतलब goods are ascertained. Yes or no? So in this answer you are going to explain what is called as the ascertained goods. You are also going to explain what is called as unascertained goods. ये दोनों आप यहां पर समझाओगे. सबसे पहले तो आपको ये दोनों समझाना पड़ेगा. ओके, उसके बाद में आप फर्दर क्या एक्सप्लेन करोगे कि अप्रोप्रिएशन कैसे होता है. हाउ इज द अप्रोप्रिएशन डन? जब गुड्स को आप सेट असाइड करते हो, the goods are set aside, and the goods are set aside either with the consent of the buyer, it is done by the seller, or it is done by the with the consent of seller, it is done by the buyer. You remember, हम लोगों ने यहां पर देखा था. आपको अगर याद हो, ये मॉड्यूल ही है आप लोगों का, राइट? जो पीपीटी हम लोगों ने क्लास में इसी से कवर किया था. वी डिड इट फ्रॉम योर मॉड्यूल ओनली, इफ यू रिमेंबर. हमने इसको कवर किया था. सो जस्ट वन यहाँ पे, यस. सो यहाँ पर आप देखो, इफ यू रिमेंबर, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन. सो यू रिमेंबर अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व. ये दिख रहा है आपको आंसर? गाइस, याद आ रहा है? अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, क्या ये क्लियर हो रहा है? राइट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. करेक्ट. सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स. फिर डिस्क्रिप्शन आपका कंफर्म. फिर ये देखो, इट इज डन बाय द सेलर with the assent of the buyer, or it is done by the buyer with the assent of the seller, and that assent can be expressed or implied. So this is a 6 mark question. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उस हिसाब से कंप्लीट पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने होंगे. ओके, बेस्ट क्या रहेगा? स्टार्ट योर आंसर विथ व्हाट इज एसर्टेन्ड गुड्स, व्हाट इज अनएसर्टेन्ड गुड्स, और उसके बाद में अप्रोप्रिएशन के रूल्स को आप यहाँ पर बता दोगे. और अप्रोप्रिएशन करना मतलब गुड्स को सेट असाइड करना, अनकंडीशनली उसको सेट असाइड कर देना फॉर द बायर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आपके पास है
This is question number 5A. So check this question. What is this question all about? It says that Mr. D sold some goods to Mr. E for rupees 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods. On the due date, Mr. E refused to pay for it. State the possession and rights of Mr. D as per the Sale of Goods Act. Now आप मुझे बताओ, ड्यू डेट वाले दिन मिस्टर ई ने पेमेंट करने से मना कर दिया. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मिस्टर डी? मिस्टर डी का क्या स्टेटस होगा? मिस्टर डी का स्टेटस क्या होगा? ही विल बिकम व्हाट? करेक्ट. अपराजिता ने आंसर किया, पूजन ने भी आंसर किया, अनपेड सेलर. करेक्ट. सो इफ ही इज अनपेड सेलर, व्हाट विल बी हिज राइट? नाउ जस्ट सी, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है. सो आपने यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दिया और आपने क्या बोला? मिस्टर डी इज व्हाट? मिस्टर डी इज अनपेड सेलर. ओके, व्हाई ही इज अनपेड सेलर? व्हाई ही इज अनपेड सेलर ये भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. करेक्ट मानव, आपने भी जो आंसर किया है, ही कैन sue एंड क्लेम फॉर द प्राइस. बिल्कुल करेक्ट. बट यू विल हैव टू टेल द एग्जामिनर व्हाई ही इज अनपेड सेलर. क्योंकि उसने गुड्स को क्या किया था? क्रेडिट में बेचा था. और ये 15 डेज का जो क्रेडिट पीरियड है ये एक्सपायर हो चुका है. रिमेंबर व्हेन वी अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर, अगर आपको याद हो, अनपेड सेलर का डेफिनेशन जब हम लोगों ने देखा था तो उस वक्त कैसे था? इट वाज लाइक दिस ओनली. जस्ट अ मिनट. यस, he denied to pay. He denied to pay. Yes or no? So मैं एक बार ये स्लाइड को ओपन कर रहा हूँ. Just give me 1 minute. Right. So I'm so sorry. ये हाँ. So आप यहाँ पे अगर चेक करो, if you just see, yes. So why he is unpaid seller? Why is unpaid seller? Because Mr. D has sold the goods. Okay, I have not shared the screen with you all. Just 1 minute. I'll do that. Yeah. So Mr. D is what? Mr. D is unpaid seller because he has sold the goods on credit, correct? And on the due date, the buyer has refused to pay for it. So if you remember कि अनपेड सेलर कौन होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने चेक किया था. हम लोगों ने जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ा था तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हु इज अ अनपेड सेलर. तो अनपेड सेलर वो होता है जब आपने गुड्स को कैश में बेचा, राइट, और सेलर ने पेमेंट करने से मना, बायर ने पेमेंट करने से मना कर दिया. या फिर हम लोगों ने देखा था जब सेलर ने गुड्स को क्रेडिट में बेचा था और फिर पेमेंट उसको नहीं आया. रिमेंबर? सो द होल प्राइस इज नॉट पेड. सो इफ यू रिमेंबर, यहां पर आप देखो, सो ही इज एन अनपेड सेलर. ये दिख रहा है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर. द गुड्स हैव बीन सोल्ड, right? So he is an unpaid seller. Definitely he is an unpaid seller. So you'll have to establish this fact because the goods were sold on credit and on the due date. ड्यू डेट वाले दिन बायर ने क्या कर दिया? बायर रिफ्यूज टू पे, देयरफॉर ही इज अ अनपेड सेलर. ये आप इतना क्यों डिटेल में बता रहे हो? बिकॉज ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. यही क्वेश्चन अगर ये 3 मार्क्स का होता या 4 मार्क्स का होता तो हम इतना डिटेल में नहीं जाते. सेकंड, आप यहाँ पे क्या बोलोगे? नाउ टेल मी, will Mr. D have any right against the goods or he will have right only against Mr. E? He will have right against the goods or he is going to have right against the buyer. आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसके अगेंस्ट राइट होगा? या दोनों के अगेंस्ट हो सकता है? रिमेंबर व्हेन वी वर स्टडिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैंने उस टाइम पर भी आपको बताया था कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा टू आइडेंटिफाई दैट द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर व्हेन इट इज अगेंस्ट द गुड्स और व्हेन इट इज अगेंस्ट द बायर. Correct. So Manav has answered here. The right will be only against Mr. E. Soumya, correct answer. Only Mr. E. Why? Because the goods are not in the custody of Mr. D. The goods are in the custody of Mr. E. Okay. So ये point आपको यहाँ पर लिखना है. 6 marks का ये आपका question हो जाएगा. Okay. Let's go ahead and see. ये question clear हुआ आप लोगों को? ये question clear हुआ आप लोगों को? Is this question clear? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, चलिए, ग्रेट. लेट्स गो अहेड एंड सी द अदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सो दैट्स इट. सो मई 2018 अटेम्प्ट में आपके पास इतने ही क्वेश्चंस थे. नाउ लेट्स गो टू द नवंबर 2018 अटेम्प्ट.
और नवंबर 2018 अटेम्प्ट के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा फ्रॉम द चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये कंपनीज एक्ट का है। अरे वाह, ये तो आपके लिए देखिए बोनस क्वेश्चन हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एसर्टेन्ड गुड्स एंड द अनएसर्टेन्ड गुड्स। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल केक वॉक होगा। अब आप मुझे बताओ, ये डिफरेंशिएट बिटवीन बोला है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप टी फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, एसर्टेन्ड अनएसर्टेन्ड। और अगर आप चाहो तो इसको पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके। या फिर इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज एसर्टेन्ड एंड जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज अनएसर्टेन्ड। बेस्ट मेथड क्या रहेगा इस वाले केस में? ये सेकंड बेस्ट मेथड ये, और थर्ड वाला मेथड ये कि जहां पर आप एसर्टेन अनएसर्टेन्ड आप सिर्फ वहां पे लिख के आ जाते हो। तो सो डिफरेंशिएट इस तरीके से आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन देयर, right, from the sale of goods act. Now let's see the other question that we have from this chapter. So okay, doctrine of caveat emptor, and you have this question for 6 marks, and they are also asking you the exceptions for the caveat emptor. अब आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा? इसमें क्या आंसर होगा? What is doctrine of caveat emptor? What is the doctrine of caveat emptor? What do you mean by caveat emptor? Let the buyer beware, correct? और यहां पर एक्सेप्शंस अपने पास क्या आ जाएगा? कैविएट एम्प्टर, इसके पास एक्सेप्शंस अपना क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी द एक्सेप्शंस हियर कैविएट एम्प्टर के अंदर? व्हाट विल बी द एक्सेप्शंस देयर फॉर द कैविएट एम्प्टर? कैविएट एम्प्टर कहां पर नहीं लगेगा? जहां पर आपने सेलर के ऊपर रिलाई किया था, रिमेंबर, आपने सेलर के ऊपर रिलाई किया था और सेलर उसी बिजनेस के अंदर है, राइट? तो कैविएट एम्प्टर आपका नहीं लगेगा। व्हाई? बिकॉज आपने सेलर के ऊपर यहां पे रिलाई किया है। सो रिमेंबर, इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, वेयर ही डिपेंड्स, सॉरी ये नॉट दिस वन, यहां पर आगे आपको मिलेगा वेयर द गुड्स वर परचेज्ड। ये देखो एक्सेप्शंस में फिटनेस टू क्वालिटी, बट इफ यू रिमेंबर हमने इसमें वो भी किया था कि अगर आपने सेलर के ऊपर रिलाई किया है, ये वाला, इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर हिज परचेज एंड द बायर रिलाइड ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट। सो इफ यू रिमेंबर दैट राम श्याम वाला एग्जांपल आप ही के मॉड्यूल में जो था, वो वाला आ जाएगा, राम हैड परचेज द कार, करेक्ट। और ये आपके इसके एक्सेप्शंस आ गए, फिटनेस एज टू द क्वालिटी एंड यूज, राइट। फिर आप ये देखिए, गुड्स परचेज अंडर द पेटेंट एंड ब्रांड नेम, गुड्स विच आर सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन मर्चेंटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैंपल डिस्क्रिप्शन, ट्रेड यूसेज, ये सब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और वेयर द सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ द फ्रॉड, सो इस केस में आप क्या बोलोगे? यहां पर सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। गाइस क्लियर? ये आंसर आपके लिए लेंदी रहेगा, काफी कुछ आपको लिखना होगा, बट यस, दिस इज हाउ द आंसर इज गोइंग टू बी, बिकॉज यस, वोल 8 पॉइंट्स यू विल हैव टू राइट। रितिका, ये आपको आठों के आठों पॉइंट्स वहां पर लिखने होंगे। सो व्हाट यू कैन डू, कैविएट एम्प्टर को आप यहाँ पे शॉर्ट में समझा सकते हो, एंड देन 8 पॉइंट्स। सो वैसे भी आप देखो 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, this means you have 12 minutes to write the answer. So I'll tell you, there will be certain questions where it will be asked for a higher marks, but उसमें आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। Let's say it is even if it's a 3 mark question, so into 2 you have 6 minutes to write the answer. But quite possible कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जो आपका यहाँ पे 2 से 3 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, तो you will have time. So this question is going to take time, but ध्यान रखना है क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है, don't try to compromise in terms of the content here. Write as much as content you can do this. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो, सो इट कैन बी 1+5, ऐसा भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी 2+4, इट कैन बी एनीथिंग, बट यहां पर आपको ऐसा रहेगा। अच्छा, सपोज करो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है आंसर को लिखने का, ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक्सेप्शन में आठों पॉइंट को मेंशन तो करना, डोंट राइट इट इन डिटेल, जस्ट एक्सप्लेन द पॉइंट्स इन 1 or 2 लाइन, उसमें भी काफी हद तक चांसेस है कि 6 में से आपको इजीली 4 मार्क्स तो श्योर शॉट मिल जाएगा। स्टिल इट इज गोइंग टू बी अ डिसेंट आंसर फॉर यू।
अगर आपको टाइम नहीं मिले पूरे के पूरे आंसर को लिखने का, तो स्टिल यू कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, बट डू राइट ऑल द पॉइंट्स हियर, जितना आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इसी अटेम्प्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। सो यस, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने केस स्टडीज वाले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी किया था। वी रेड दोस 18 केस स्टडीज, करेक्ट। हमने जो वो 18 केस स्टडीज कवर किया था, उस 18 केस स्टडीज के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रिमेंबर? Mr. G sold some goods. If I can just show you the case studies वाला folder, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो केस स्टडीज हमने किए थे, रिमेंबर दिस केस स्टडी वी हैड डन, एंड इन दिस केस स्टडी ओनली वी हैड कवर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देखो, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमने कवर किया था, इफ यू रिमेंबर द थर्ड क्वेश्चन दैट वी डिड, वो यही सेम क्वेश्चन था अपना, यस और नो? तो ये सेम क्वेश्चन आपका है वहां पे। सो आई कैन स्किप दिस क्वेश्चन, राइट? तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया था केस स्टडी में। इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, मिस्टर जी विल बिकम द अनपेड सेलर एंड ही विल हैव द राइट टू रिसीव द मनी। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर द ड्यूज आर सेटल्ड और नॉट। सो आप रितिका चेक करो, ये जैसे 6 मार्क का क्वेश्चन है, so 6 into 2, this means you have 12 minutes to write the answer for this particular question. Now do you think this will take 12 minutes to write the answer? Answer is no. ये आंसर आपका 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज एक तो ये केस स्टडी क्वेश्चन है। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर इज ब्रीफली अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस, कि ऐसा हुआ था। फैक्ट ऑफ द केस में इस पूरे को कॉपी मत कर देना एज इट इज। इन ब्रीफ आप बताओगे मिस्टर जी सोल्ड गुड्स टू एच, द गुड्स वर set aside, the amounts were settled in the cash, and Mr. G had informed Mr. H the goods are ready for the delivery, which was again uh, verified, है कि नहीं? Which was again verified, but again the delivery was not taken, and later on the goods were damaged. So who will be responsible? Mr. H will be responsible, and why? Because the goods are already ascertained and the goods were in the deliverable state. The delivery was delayed by Mr. H. So the party who delays the delivery of the goods or who is in fault will be responsible for the loss, which in this case is Mr. H. So Mr. G will have all the right to receive the money, and he will file a suit for the recovery of the price, correct? So ये आपके पास आ जाएगा। Now this is again not going to take much time, तो ये 5 मिनट्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर रितिका जो आपका टाइम बचेगा वो आपको यहाँ पर हेल्प कर देगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, व्हेन यू गेट दिस क्वेश्चन पेपर, उस वक्त आपको ये अप्रोच ऑलरेडी डेवलप करना होगा कि देखो इस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो कौन सा क्वेश्चन है जहां पर मैं टाइम सेव कर सकती हूँ। तो ये चीज आपको क्वेश्चन पेपर का जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आपको मिलता है, वो 15 मिनट्स में आपको ये स्ट्रैटेजी उसी टाइम डेवलप करना पड़ेगा। और ये आप कैसे डेवलप कर पाओगे, अगर आपने पहले से राइटिंग में प्रैक्टिस करके रखा है। एंड दैट इज द रीजन आई एम्फोसिस अ लॉट ऑन द राइटिंग प्रैक्टिस, because knowing answer is one thing and then performing is another thing, correct? So वो वाला सिनेरियो रहता है कि आप राइटिंग अच्छे से अगर लिख सको तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है? सो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आप देखिए यहाँ पे दिस इज अगेन द कंपनीज एक्ट, सो अगेन वी डोंट हैव टू डू दिस टुडे। और ये आपका अगेन कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आ गया। सो दिस वाज देयर इन द नवंबर 2018 अटेम्प्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ मे 2019। और मई 2019 के अंदर आप अगर देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज ओके, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ implied warranties? Can anyone answer for this question? What are the various kinds of implied warranties? 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 अच्छा ये बता दो कितने हैं? How many number, types of implied warranties are there? Four. Four types. Do you remember?
4 types of implied warranties. हाँ, so अगर आप यहाँ पे चेक करो, so here only you are going to get, so if I just take you, ये देखो, ये रहा 4 वारंटीज, ये देखो ये आ गए आपके implied warranties, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए ये आपके हो गए implied warranties, जिसमें आपके पास क्या है, warranty as to the undisturbed possession, warranty as to the non-existence of encumbrance, disclosure of the dangerous nature of the goods, and warranty as to the quality or fitness of the usage or trade. Okay, clear ये वाला? तो ये 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है, इजी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का पूछा गया. Then next question that we have, this is from again the sale of goods act से ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4A. So an non-owner can convey a better title to the bona fide purchaser of the goods for the value. Now discuss the cases when the person other than the owner can transfer the goods and title as per the provision of the sale of goods act. और ये 6 marks का question दिया है. Can anyone please share what is the legal maxim जो यहाँ पर use होगा? यहाँ पर कौन सा legal maxim use होगा? If you can answer that, what is the legal maxim which will be used here? No one can give what one does not have. इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम क्या बोलते थे? If you remember, no one can give what he has not got. If you remember, legal maxim एक था, nemo that quod non habet. If you remember, याद आ रहे? तो आप यहां पे क्या करोगे, एक लाइन में पहले उसको समझाओगे, nemo that quod non habet. बिल्कुल करेक्ट रितिका, राइट? पहले आप उसको समझाओगे यहाँ पे, तो एक लाइन में आप सबसे पहले ये बताओगे that who can give a, who can convey a better title or who will provide a good title. It is going to be the buyer or owner of the goods. Only the owner can provide a better title or a good title. However, there are certain exceptions in the Sale of Goods Act where even a non-owner can convey a better title. और वहां पर फिर आप क्या करोगे, पूरा लिस्ट तैयार करोगे. तो इस पूरे लिस्ट में कौन कौन है, अब ध्यान रखना, अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट विच यू हैव टू राइट हियर. तो कौन कौन कर सकता है यहाँ पे कन्वे? यू हैव एजेंट, यस और नो, जॉइंट ओनर्स, एजेंट, जॉइंट ओनर, राइट? तो ये देखो हमने मॉड्यूल के अंदर इसको कवर किया था. सो आप ये देखो, नेमो दैट क्वाड नॉट, आप देखो ये मैंने हाईलाइट भी करके रखा था और मैंने आपको बोला था इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, राइट? और ये देखो ये क्वेश्चन और एक्सेप्शंस में यहाँ पर है, इफ इट इज सोल्ड बाय द मर्केंटाइल एजेंट, अगर मर्केंटाइल एजेंट बेचता है, देन सेल बाय द जॉइंट ओनर्स हियर, then sale by the person in the possession of a voidable contract. Now Ritika, one thing you can do is not writing all these examples in the answer. This looks very lengthy because you are writing also the examples here. You see these examples also here. What you can do is you can just make it precise and practice, and that's why that's where you will improve where to write how much and how can you trim the answer. Correct Soumya, joint owner, bilkul correct यहाँ पे. Then the one who has got the possession of the goods, right? The goods are sold. Then sale by the buyer, obtaining the possession of the property without which is being vested. So advance में आपका यहाँ पे contract हो गया है. Effect of estoppel, then again sale by the unpaid seller. And where it is in the other provisions of the other act, जहाँ पर receiver, liquidator ये सब अगर goods को purchase करते हैं तो ये आ जाएगा. So you don't have to write everything in detail, but you have to explain it in 1 or 2 line. And I think that would be more than enough for you in your exam. So just practice these things in answer, you know, these answers, right? कि 8 marks का अगर ये question है, 6 marks का question है, तो आप कैसे अपने कंटेंट को यहाँ पर प्रेसाइसली करके उसको लिख सकते हो. आप चाहे जब फर्स्ट टाइम इसको लिख रहे हो तो चाहे आप देख कर ही इसको लिखो, बट डू प्रैक्टिस दैट बिकॉज दैट विल अगेन गिव यू अ गुड एज एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ रिविजन फॉर योर एग्जाम, राइट? तो आपका कॉन्सेप्ट भी ब्रश अप हो जाएगा और यहाँ पे पूरे कंटेंट को आप तैयार भी कर दोगे.
right? Thereafter, do we have any sale of goods act question? Yes, so we have a 6 mark case study. So please check this case study और आप मुझे इसको पढ़ के बताओ क्या यहाँ पर रहेगा। पहले तो आप इस केस को पढ़ लो और इस केस के बाद में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर केस स्टडी। सो ये आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा कि बायर की क्या ड्यूटी है और सेलर की क्या ड्यूटी है विद रिस्पेक्ट टू द कैविएट एम्प्टर। फिर आपके पास ये क्वेश्चन आता है वेदर मिस्टर दास वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक और द राइट टू काइंड ऑफ वुड एज रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग हिज पर्पस, राइट। नाउ यहाँ पर हमें मिस्टर दास के लिए चेक करना है कि क्या मिस्टर दास को रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मिस्टर दास कौन है वो ये केस को पढ़ के पता चलेगा। सो दिस लाइन गिव्स दैट मिस्टर दास इज अ कस्टमर एंड हियर मेसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट दे आर अ फर्म हु आर डीलिंग इन द वुड। अब आप इस केस को एक बार पढ़ो। आई विल गिव यू ऑल 2 minutes टू रीड दिस केस and then we will discuss what should be the answer for this question. So first and foremost यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ये जो कंपनी है मेसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट जो भी एक फर्म है they are already dealing in the wholesale and retail of buying and selling of the various kinds of wooden logs, okay, which is again customized as per the requirement of the customer. और ये कौन कौन से वुड में डील करते हैं? रोज वुड, मैंगो वुड, टीक वुड एंड बर्मा वुड, ओके। आगे यहाँ पे आगे आपके पास मिस्टर दास हु इज अ कस्टमर and who has asked for wooden log, okay, which is measuring 4-inch broad and 8 feet long as required by the carpenter, okay. Now Mr. Das specifically mentioned that he would require the wood which would be best suited for making the wooden doors and wooden frames. तो उन्होंने क्या कर दिया अपना पर्पस यहाँ पर बता दिया था। yes or no? The customer has already mentioned about the purpose, yes or no? अपना पर्पस यहाँ पे बताएं। द शॉप ओनर अग्रीड एंड अरेंज्ड द वुडन पीसेस एंड कट एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट। द कारपेंटर विजिटेड मिस्टर दास हाउस द नेक्स्ट डे एंड ही फाउंड दैट द सेलर हैड सप्लाइड मैंगो ट्री वुड which is most unsuitable for the purpose. The carpenter asked Mr. Das to return the wooden logs as it would not meet his requirement. Now, the shop owner refused to return the wooden logs on the plea that the logs were cut as per the specific requirements of Mr. Das, hence could not be resold. So, will Mr. Das get the right to recover the money? क्या Mr. Das अपना पैसा recover कर सकते हैं? Answer is yes, he can do. क्या यहाँ पर रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेप्शन। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट पूजन, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे पूजन ने यहाँ पे आंसर करेक्ट किया है। मानव हैज आल्सो आंसर्ड इट करेक्टली। अपराजिता करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, यू हैव मिस्टर दास जो बायर है उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या कर दिया था, अपना जो पर्पस था वो बता दिया था। अब उनका पर्पस यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा एंड ही हैड आल्सो रिलाइड ऑन द सेलर। So here in this case, the rule of caveat emptor will not be there. This will be one of the exceptions of the caveat emptor. Hence, no recovery. Mr. Das can do the recovery of the amount. Correct? So ये आपका एक 6 marks का question यहाँ पे आपको मिला. Okay? So this is again. आप बताओ ये समझ में आया आप लोगों को? Guys, could you get it? ये clear हुआ आप लोगों को? Correct, Ritika. He can claim his money back as he had already mentioned the purpose for the goods. Okay. चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दिस इज ओके, दिस इज दैट होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो ये तो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड हो गया। तो जब हम कंपनीज एक्ट के पीवाईक्यू को करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो वी हैव नवंबर 2019 अटेम्प्ट पेपर। ओके, नवंबर 2019 में यहाँ पे हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, ये देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपके लिए। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम बिफोर आल्सो। स्टेट द एसेंशियल्स। अब उस वक्त क्या था, ये 6 मार्क्स के लिए पूछा था। अभी इसको कितने मार्क्स के लिए पूछ लिया? 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया, राइट? क्वेश्चन वही, मार्क्स नहीं, करेक्ट? तो आपको यहां पर थोड़ा सा कट शॉर्ट करना होगा। सो डू यू हैव टू मेंशन इन दिस क्वेश्चन, शुड यू मेंशन व्हाट इज एसर्टेन गुड्स, व्हाट इज अनएसर्टेन गुड्स? क्या आप उतना उसको वहां से शुरू करोगे? Will you start with explaining those terms? Answer is no. Why? Because 4 marks के लिए दिया, तो आप straight away to the point जो क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने आंसर को
मेंशन कर दोगे. Then we have this another question which is again, okay, so what are the rights of unpaid seller? Now they have specifically asked you against the goods and this has been asked for 6 marks. ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, आप ये वाला चार्ट बना के आओगे, जो आपके मॉड्यूल के अंदर चार्ट दिया हुआ है, आप सबसे पहले वो चार्ट बना के आओगे यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर्स, आई जस्ट शेयर दैट चार्ट ऑल्सो, जो बिल्कुल आपके मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है. ये वाला चार्ट देखो, ये अगर आप देखो यहाँ पे, वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड ऑन और वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड ऑन, आप ये बताओगे और ये सब चीजें आपकी रहेंगी. Then you will explain what is lien, what is stoppage in transit, what is resale, and what is withholding the delivery. Right? So ये सब points आप यहाँ पर लिख के आओगे, where you will explain that lien can be exercised when the goods are in the custody of the seller, and then lien आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो, सेम वे स्टॉपेज एंड ट्रांजिट ये कब एक्सरसाइज कर सकते हो, रीसेल ये आप कब कर सकते हो, और विद होल्डिंग द डिलीवरी. सो दिस यू विल हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल हियर. 6 मार्क्स का ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन होगा. सो व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, मेक दैट चार्ट एंड आफ्टर दैट explain all the 4 reliefs that he has, or the 4 rights that he have. But it will be very important for you to clearly specify there that when the property has passed on उसमें ये 3 है, and when the property has not passed on तो आपके पास ये 4 options आपके पास है. तो even if you make this chart, it is again going to save time. Plus मैं तो ऐसा बताता हूँ कि इस अकेले इस डायग्राम से आपका पेज भर जाएगा. एक पेज तो आपका इसी से भर जाएगा, और अगले पेज में आप क्या करो, आधे आधे पेज में इसको लिखना शुरू कर दो, तो अल्टीमेटली आप देखो आपका 3 पेज का एकदम मस्त सा आंसर दिखता है. साइकोलॉजिकली आप देखो, एग्जामिनर जब आपका ये चार्ट देखेगा सबसे पहले, तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट यस यू नो द आंसर. और उसके बाद अगर आपने 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखे हैं एक्सप्लेनिंग ऑल द 4 राइट्स, सो अगेन 6 मार्क्स के लिए मतलब बच्चे की जान लोगे क्या, सो यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स हियर. ओके, सो ये आपको अप्रोच इधर डेवलप करके रखना है. ओके, नाउ वी हैव दिस अनदर केस स्टडी. ये केस स्टडी इस पेज पे है और अगले पेज पे थोड़ा आधा है. सो मैं चाहता हूं आप इस केस स्टडी को पहले यहां पर पढ़ लो और उसके बाद में आप इसको आंसर करोगे. अल्टीमेटली हमें आंसर क्या करना है, दैट एक्सप्लेन द बेसिक लॉ ऑन द सेल बाय सैंपल. तो ये तो आपका देखो वापस से पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, वेयर दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द केस लॉ. ये आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है. और उसके बाद में आपके पास केस के ऊपर क्वेश्चन आया है, that what are the options which are there for the buyer for the grievance redressal and what would be your answer. तो चलिए पहले केस को यहाँ पर पूरा पढ़ लेते हैं, and I give you all 2 minutes for this. So what is your take? So यहाँ पे देखो मिसेस गीता जो है वो एक लोकल राइस और व्हीट होलसेलर शॉप के पास गई, उनको बोला 100 kg मुझे बासमती राइस चाहिए. शॉपकीपर ने प्राइस भी कोट कर दिया, जिसको मिसेस गीता ने अग्री कर लिया, और उन्होंने बोला शी वुड लाइक टू सी द सैंपल ऑफ व्हाट विल बी प्रोवाइडेड बाय द शॉपकीपर बिफोर शी अग्रीड अपॉन. शॉपकीपर showed her a bowl of rice as the sample and the sample exactly corresponded to the entire lot. Now this is very important कि जो sample दिखाया, the sample exactly corresponded to the entire lot. आगे देखिए, the buyer examined the sample casually. अगेन आपको आंसर के मतलब जो क्वेश्चन है उसी के अंदर आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. The buyer examined the sample casually without noticing the fact that even though the sample of the basmati rice, it contained mixed long and short grains. Okay. The cook on opening the bags complained that the dish if prepared with the rice would not taste same as the quality of rice was not as per the requirement. And now Mrs. Geeta wants to file a suit of fraud against the seller alleging him for selling the mixed good and cheap quality rice. Will she be successful? तो आप मुझे सबसे पहले बताओ, will she be successful here? क्या यहाँ पे वो सक्सेसफुल होंगी? आंसर इज नो. मानव ने यहाँ पे आंसर किया है शी कांट स्यू, अगेन कैवियट एम्प्टर यहाँ पे लग जाएगा बिकॉज शी कैजुअली एग्जामिन द सैंपल. ओके, सो मानव यहाँ पे आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस करके, ये तो रहेगा यहाँ पे दैट शी कैजुअली एग्जामिन द सैंपल, बट इससे भी ज्यादा क्या होगा, दैट she had not made known the seller the purpose for which the rice were purchased. करेक्ट, आपने पर्पस नहीं बताया था, आपने सीधा बोला मुझे बासमती राइस चाहिए. सेलर ने आपको सैंपल दिखाया ना, आपका जो सैंपल था वो आपके लॉट के साथ मैच करता है.
So you had not mentioned the purpose for which the rice was taken. So now if it is not fit for the use, again the seller will not be made responsible for that case. आप बताइए, is this clear? And therefore the caveat emptor will not be applied here. Correct. And of course उसके बाद में add on point में आप cherry on the cake क्या हो जाएगा, that she casually applied here. So if you see ये वाला पैराग्राफ आता है, it is the duty of the buyer to satisfy himself before buying the goods that the goods will serve the purpose for which they are being bought. If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, or if he depends upon his own skill and judgment, the buyer cannot be held responsible. The buyer cannot be held responsible. Make sense? Guys, clear? ये वाला पार्ट. और इसी में अगर आप यहां पे देखो, आगे जो पॉइंट आपको बता रहा है, what would be your answer if Mrs. Geeta had specified her exact requirement as to the length of the size of the rice? So in that case, तब तो यहां पर फिर क्या हो गया, अगर मिसेस गीता ने स्पेसिफाई ही कर दिया है अपना एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, फिर तो गेम ही खत्म हो गया ना. देन इन दैट केस मिसेस गीता विल हैव टू देन शी विल गेट द राइट, बिकॉज कैविएट एम्प्टर के हिसाब से अगर आप देखो तो implied कंडीशन हो जाता है आपका that the goods should correspond with the sample. Yes or no? आप देखो कैविएट एम्प्टर के जो एक्सेप्शंस अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, उसमें एक यही तो था that if the goods are sold by the sample or if the goods are sold by the description, then again ये देखो मैंने आपको बताया भी था PYQ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया. So आप ये देखो, if the goods are sold by the description, right, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. तो यहाँ पर description अगर आपने बता दिया कि exact length of the rice, then the entire lot should correspond with that description. And if not, then the seller would be responsible. But in this case, Mrs. Geeta had not done that. So Mrs. Geeta will have no remedy, legal remedy against the seller. Guys, this is clear. Guys, this is clear. हाँ, बिल्कुल correct. अपराजिता ने यहाँ पे बोला है implied condition of sale by sample. बिल्कुल करेक्ट. सैंपल भी नहीं, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे देखो उसमें क्या है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द राइस. सो दिस विल बी डिस्क्रिप्शन. दिस विल बी डिस्क्रिप्शन. ओके, राइट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. तो आप देखो ऐसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Then again, if you see, do we have any other question? No. So this was your November 2019 attempt. Now let's see your current attempt, November 2020. November 2020 attempt में क्या question आया था एग्जाम के अंदर. So ये तो question contract act का था. This is again okay. So state the 4 exceptions, any 4 exceptions of the doctrine of caveat emptor. रितिका, कितने points लिखोगे आप यहाँ पे? How many points will you write here? 4 or 8? कितने लिखोगे आप यहाँ पे? Will you write all the exceptions? No. You'll write any 4. सर कौन से 4? आपके ऊपर है, जो मर्जी आप 4 लिखो. ठीक है, श्रद्धा अनुसार जो मर्जी आप यहाँ पे लिखो. 4 exceptions you need to just write here in the answer. Right? So ये आपके लिए easy question हो गया. Then again, if you see, you'll get this question from the Sale of Goods Act. So, okay. Explain any 6 circumstances in detail. But यहाँ पर देखो in detail बोला है. In which non-owner can convey a better title to a bona fide purchaser of the goods for a value as per the Sale of Goods Act 1930. 6 marks question. Now when they have said it in detail, will you include examples also in all these 6 cases? जो भी 6 points आप लिखोगे, क्या आप उसमें example भी लिखोगे? Answer is yes. So when they have said it in detail, then you need to explain those points, plus you also need to put the example here. 6 marks question. Okay? तो आप अगर ध्यान से नोटिस करो, ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, ये ट्रिकी या ऐसा नहीं होता, बट इसमें क्या ट्रिक रहेगा, दैट टाइम मैनेजमेंट इज अगेन गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट फैक्टर. और ये आप कैसे कर पाओगे, when you write and you practice at home. Okay, then we have this. Okay, this is a 6 mark question and this is I think going to be a cakewalk question. यहाँ पे क्या बताया है, Miss R owes 2-wheeler which she handed over to her friend Miss K on sale or return basis. Even after a week, Miss K
neither returned the vehicle nor made any payment for it. Now she instead pledged the vehicle to Mr. A to obtain the loan. Miss R now wants to claim the two-wheeler from Mr. A. अब ये कहीं से इन्होंने कॉपी कर लिया. हाँ, तो मिस्टर ए. सो विल शी सक्सीड? आप मुझे बताओ. इस टाइप के क्वेश्चन हमने केस स्टडी के अंदर भी कवर किया था और अदरवाइज भी हमने देखा था. विल शी सक्सीड? अब आप देखो, ये इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स के लिए पूछा है. आप मुझे बताओ, विल शी बी एबल टू डू सो? यस और नो? विल शी बी एबल टू डू सो? यस और नो? इसका आप आंसर करो, क्या होगा? यस मानव बोल रहे हैं यस. मानव अपराजिता बोलते हैं यस. एक बार प्लीज आप दोबारा से चेक करो. सेल ऑन व्हाट बेसिस? इट इज सेल और रिटर्न बेसिस. सो ऐसे दो तरह के हमने सेल देखे थे. वन वाज सेल और रिटर्न बेसिस एंड द अदर वाज सेल और कैश बेसिस. राइट? रितिका भी बोलती है यस. ओके, सो यू गाइज नीड टू चेक द कॉन्सेप्ट वंस. एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहां पर चेक करना होगा सेल ऑन रिटर्न बेसिस का. आप देखो, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग आप करेक्ट आंसर करोगे. आप लोगों का आंसर गलत है. आंसर इज नो. द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज बाय प्लेजिंग व्हाट इट हैज बीन डन. जैसे ही उन्होंने प्लेज कर दिया, द गुड्स आर डीम्ड टू बी सोल्ड. इफ यू रिमेंबर, सो जस्ट चेक दिस. ये है हमारा सेल और रिटर्न बेसिस, जिसको हम अप्रूवल बेसिस बोलते हैं. और इस पे आप देखो, ये वाला एग्जांपल हमने देखा था. ए डिलीवर्ड ज्वेलरी टू बी. बी प्लेज द ज्वेलरी विद सी. तो जैसे ही प्लेज कर दिया, ये क्या हो गया? दिस इज योर डीम्ड एक्सेप्टेंस. सो ए विल हैव नो राइट अगेंस्ट द सी. करेक्ट? द ओनली क्वेश्चन व्हाट इट वुड हैव चेंज्ड, अगर ये ऐसा होता सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, then in that case ये recover हो सकता था. A could recover, but here it cannot be recovered. Now tell me what will be the answer for this? अच्छा, अभी याद आ गया? Oh yes, right? आप बताइए, is this clear? Correct? कितना सिंपल, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. So in this question, what are you going to write? You are going to mention a couple of things. First, definitely आप यहाँ पे ये केस को समझाओगे. ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पर सबसे पहले तो केस को आप इंट्रो कर देना कि व्हाट वाज द केस हियर. फिर आप बता देना व्हाट इज द प्रोविजन ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. और उसके बाद में आप फिर ये बताना, देयरफॉर इन दिस केस will she succeed? Answer is no, she will not succeed because when the goods were pledged, it was deemed acceptance. So what she has right is she can again sue Miss K. She can sue Miss K for the price. That's it. She can sue Miss K for the price. तो ये आप यहाँ पे आंसर नो करोगे और फिर आप बताओगे what remedy R has. आप बताइए, डज दिस मेक सेंस? बिकॉज इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन. यही क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स के लिए आएगा तो आप स्ट्रेट अवे क्या बोलोगे? नो, शी कैन नॉट रिकवर बिकॉज द गुड्स वर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड एज सून एज द गुड्स वर प्लेज्ड it was what it was deemed acceptance, therefore the goods are already sold. So Miss R will have only right against the buyer Miss K for the price. That's it. आया समझ में? Okay, let's see then next question. 5th A, we have this. Okay, तो ये हमारा प्रोविजन आ गया. फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है would your answer be different if it had been expressly provided that the vehicle would remain in the property of Miss R until the price have been paid. तो आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप बताओगे कैश ओनली बेसिस, सेल ऑन कैश ओनली और रिटर्न बेसिस. तो आप ये आंसर कर दोगे. तो चलिए, फिर तो आपके पास ये ब्रेकअप ही यहाँ पर पूरा आ गया. और देखो, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा भी है व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल विथ
Miss R. So Miss R is now what? She is now a unpaid seller. Okay. She is now the unpaid seller. So all the right against the buyer she is going to have, not against the goods, because the goods are now in the possession of any third party. So goods के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन buyer के ऊपर आप यहाँ पे कर सकते हो. Right? So ये आपके पास company law के questions. So that's it. So here we have completed the past year questions of Sale of Goods Act. We have covered from May 2018 till November 2000, the December 2020 attempt, right? We have covered all the questions exhaustively. और आपने ये definitely notice किया होगा हमने किस लेवल पे तैयारी किया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट को और किस लेवल पे आपको एग्जाम क्वेश्चन मिल रहा है. आई थिंक यू ऑल वुड अग्री टू दिस, राइट? इस बात को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि हमने कितने ज्यादा डिटेल में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ा है और एग्जाम में आप देखो आपको क्या लेवल आ रहा है. तो मेरा हमेशा मानना है इफ इंस्टीट्यूट उनका बेंचमार्क ये है, इफ दिस इज ICAI's लेवल, मैं हमेशा ये लेवल पे बिलीव करता हूं दिस शुड बी योर लेवल, राइट? तो अगर आप इतने की तैयारी करो यहां तक नहीं भी पहुंचे, यहां तक भी पहुंच गए, तो आप देखो इंस्टीट्यूट से तो आप ऊपर ही हो. तो अगेन वो जो पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, बिकॉज अगेन एज आई ऑलवेज से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द रैंक. करेक्ट? सो विद दैट नोट आई टेक योर लीव. दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. टेक केयर. बाय बाय.